Good morning, students. Today we will discuss about the introduction of similar triangles. In this video, we will discuss first the definition and illustration of similar triangles, differentiate triangles similar and triangles congruent, and find the similarity ratio and scale factor of similar triangles. Now, we have here the set of shapes, and I wanted to pair these shapes according its number of sides. Then we have this. Now we will be differentiate similar versus congruence. Let us see. So in this figure, in left side the figures are similar, and on the right side the figures are congruent. So what is the difference between these two? When we say similar figures, these are the figures with same shapes, and in congruent figure they are the figures with same shape and same size. Same shape and same size for congruent figures, right? Whereas for similar triangles, these are only of same shape, right? And for the congruent figures and similar figures, these are the main difference. Same shapes in these two figures, same shapes, and in congruent figures we have same shapes and same size. And in similar figures the corresponding angles are congruent, whereas in congruent figures the corresponding angles are congruent. And in similar figures the corresponding sides are proportional, whereas in the congruent figure the corresponding sides are congruent. So these are the main difference between similar figures and congruent figures. In congruent figures, similar figures, the corresponding sides are proportional and corresponding angles are congruent. And in the congruent figures we have corresponding sides are congruent as well as the corresponding angles are congruent. Okay, and this is denoted by similar figures are denoted by the symbol this, and it is read as similar to, and congruent figures are denoted by this sign and is congruent to, right? So in similar figures you can see that these two triangles are same shape, and whereas the corresponding angles of both the triangles are congruent, and the corresponding sides of both the triangles are proportional. Both the sides are proportional. So let's talk about the sides. What do you mean by the sides are proportional? So let us see. The corresponding angles of both the triangles are congruent. That means angle A is congruent to angle P, angle B is congruent to angle Q, and angle R is congruent to angle C, right? So you can see angle A is equal to angle P, congruent means equal, and angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R. So that means in similar triangles corresponding angles are congruent. That means angle A is congruent to angle P, angle B is congruent to angle Q, and angle C is congruent to angle R. So congruent and equal
means same for corresponding angles of two triangles, right? Now let's talk about the sides are proportional. What do you mean by the sides of both the triangles are proportional? Let's see. Now proportions of corresponding sides. So you can see here in triangle PQR, side PQ is proportional to side AB. So that means PQ upon AB, and side PR is proportional to side AC, and side QR is proportional to side BC. So that means PQ upon AB is equal to AC upon PR upon AC and is equal to QR upon BC. So that means corresponding sides of similar triangles are proportional. So these are the basic properties of similar triangles. यस स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि सिमिलर ट्रायंगल्स, तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. उनके corresponding angles equal होते हैं और corresponding sides proportional होते हैं. तो let us see. Corresponding means, पहले तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए. Suppose we have a triangle ABC and another triangle is PQR. Right? तो they are having same shape. Shape same होते हैं, size same नहीं है, shape. तो इसमें suppose ये एंगल आपके पास 60 का है, ठीक है, ये एंगल भी आपके पास 60 का है. सपोज ये आपके पास 50 का है और ये 50 का होगा और ये आपके पास कितना होगा 70 का, ठीक है, ये 70 का है. तो करस्पॉन्डिंग मीन्स क्या हो गया कि जैसे एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल पी है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है. ऐसे एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है. तो एंगल 70 है, एंगल सी, तो ये भी 70 है. तो एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल आर है. तो करस्पॉन्डिंग मीन्स आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे ये इक्वल है तो ये इक्वल है, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये एंगल है. तो दैट मीन्स वी कैन से दैट कि इनके एंगल्स मतलब ये एंगल्स तो इक्वल हैं, बट अब साइड सपोज दिस इज 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, इसका सपोज 3 है, ये 6 है, सपोज दिस इज 4, ये 8 है. तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इसमें देखो इस वाले ट्रायंगल में कि एंगल ए जो है दैट इज एंगल पी इन ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर ना. तो पहले अभी देख लेते हैं. मैं ट्रायंगल इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूं कि मैं करस्पॉन्डिंग उसी तरह से रखूंगा. तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर. तो दैट मीन्स बिकॉज एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल पी, एंगल बी इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल आर. तो इट मीन्स एंगल ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी. अब देखते हैं कि साइड प्रोपोर्शनल होने के मतलब इक्वल नहीं है, इसमें प्रोपोर्शनल है. तो मतलब अगेन ए बी अपॉन पी क्यू, ये कितना आ रहा है 2/4 विच इज 1/2. ऐसे ही बी सी अपॉन क्यू आर, दिस इज 4/8 विच इज अगेन 1/2 एंड AC upon
PR, that is which is again 3/6, which is 1/2. So all of these ratios are equal, which are equal to half. So that means these sides are proportional. So that means therefore AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. So that means when all the corresponding angles of these two triangles are equal, whereas all the sides are proportional, so ट्राइंगल, अब देखो क्योंकि ए का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, पी है, तो ट्राइंगल पी और इधर कितना हो जाएगा, सॉरी एंगल ए इधर हो जाएगा पी, इसका बी, इसका क्या है क्यू, इसका सी है, इसका आर है. तो दैट मीन्स दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. तो इट मीन्स क्या हो गया, देखो नेम लिखने में भी हमारे पास डिफरेंस होता है. अगर ट्राइंगल एबीसी को मैं ट्राइंगल आर पी क्यू लिख दूंगा तो वो गलत हो जाएगा. आर पी क्यू अगर मैं लिख देता हूं सपोज ट्राइंगल एबीसी, मैं सपोज लिख देता हूं ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू पी, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग एंगल ए है वो आर के इक्वल होना चाहिए था, तो ए जो है आर के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, ए तो पी के इक्वल है. तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट. तो ये आपने ध्यान में रखना है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और एंगल इक्वल होनी चाहिए. दैट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. और अगर हम कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे थे तो कॉन्ग्रुएंट में तो आपने जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर हम कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब वो दोनों सेम सिमिलर साइज और शेप दोनों सेम होंगे. मींस अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप कर सके. जैसे मैं इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रख दूंगा तो ये तो ऐसे बन जाएगा, तो ये ओवरलैप नहीं हो पाएगा. तो दैट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो सभी ट्राइंगल्स, जैसे दो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर हो सकते हैं, बट दो सिमिलर ट्राइंगल्स आर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, राइट. तो अब देखो इसी से रिलेटेड कुछ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और एक्सप्लेन करता हूं. यस, let us see in these figures 1 2 3. फर्स्ट फिगर में देखो ए 60 है, एंगल ए जो है एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल बी जो है एंगल पी के इक्वल है, और एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है. देखिए फर्स्ट फिगर में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू and angle B is equal to angle P and angle C is equal to angle R. So that means angle A is corresponding to angle Q and angle B is corresponding angle of angle P. ठीक है, and angle C is corresponding angle of angle R. ठीक है, in these two triangles. तो देयरफॉर ट्राइंगल, अब ये गलत हो जाएगा कि ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर. दैट्स रॉन्ग. राइट क्या है, जो करस्पॉन्डिंग है वो लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर. क्योंकि आपको पता है कि ए जो है क्यू के इक्वल है, बी जो है वो पी के इक्वल है, और सी जो है वो आर के इक्वल है. तो दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर. तो ये तो फर्स्ट केस का आंसर आ गया कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अब इसमें देखेंगे, अब ये हमारे पास साइड्स है. साइड्स में देखो कि इधर देखेंगे आप फिगर 2 में, इसमें साइड्स ए बी अपॉन, इसकी साइड्स देखो ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 2/4 विच इज 1/2. ऐसे ही BC upon RP which is again 2.5/5 again 1/2 and AC upon QP, so that is again 3/6 which is 1/2. So that means the sides of these
two triangles, corresponding sides of these two triangles are proportional. तो अब हम कैसे सिंबलाइज कैसे करेंगे हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, कि कैसे हम सिंबॉलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे सिमिलर है। तो देखो क्या हो जाएगा, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, देखो ए बी है तो क्यू आर था और आरपी है, तो कितना हो जाएगा ए बी सी क्यू आर पी, राइट। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। तो आप देख रहे हो कि ए बी अपॉन क्यू आर आ रहा होगा, ठीक है, बी सी अपॉन आर पी आ रहा होगा, देखो, और ए सी अपॉन क्यू पी आ रहा होगा, आ रहा है। तो दैट मीन्स सिंबॉलिकली हम जो है इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नाउ इन थर्ड केस वी हैव, ये 70 है, ये 80 है, 80 तो ठीक है, ये 70 है, ये एंगल आपके पास गिवन नहीं है, तो तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 80, 110, तो ये अपना भी 70 हो गया, ठीक है, ये अपना भी हमारे पास 30 डिग्री हो गया। तो दैट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स इन थर्ड केस, ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, राइट। तो ये कंडीशंस है हमारे पास टू ट्राइंगल्स को सिमिलर करने का, राइट। तो आज के लिए हम यही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल से करेंगे, जो कि डिफरेंट कंडीशंस होती हैं दो ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए। जैसे आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास 5 कंडीशंस होती थी, जो आपने 9th क्लास में किया था, कि साइड साइड साइड, एंगल 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 साइड, साइड एंगल साइड, RHS, ठीक है, और एंगल साइड एंगल, ये आपने 5 कंडीशंस की थी। अब इसके लिए देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डिफरेंट क्राइटेरियन क्या होता है टू ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने का, ठीक है। तो इन टुडेज क्लास दैट इज मोर देन इनफ, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके सिमिलरिटी कंडीशंस करेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।